Good morning students. Welcome back to the online sessions of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I request you to don't go outside your homes. Also avoid to go into the crowded places. And if it should be necessary and have to go outside your homes, use the properly face mask covers. Take sanitizers with you. Always wash your hand at a specific time of interval up to a specific 20 seconds. So stay home and stay safe. Let me start to a topic that we have to discussing on today's sessions. Actually, we are moving on to the chapter number 12, that is the electricity. We have already discussing about the few components which should be studied in the chapter number 12 of electricity, like electric charges, electric current, electric potential difference. These are the topics of Ohm's law. What is called resistance? These are the topics that we are discussing into the previous sections. So, if we consider about the resistance is equal to what? Voltage upon electric current, V upon I. R is equal to V upon I. That should be implemented by the omega. उसकी जो SI यूनिट होती है ओमेगा से मेजर की जाती है. So, resistance जो पहला टॉपिक हमारा कि on what the resistance of the substance depend. रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी सब्सटेंस का कैसे डिपेंड करता है, कौन से ऐसे बेसिस है जिस पर रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है. So, if we consider that कि resistance of any substance that depend upon the specific kind of the substance, किस तरह का substance है उस पर डिपेंड करता है कि depends upon the kind of substance as well as its temperature as well as its length of the conductor and area of cross section. ऐसे सारे segments पे जो होता है वो resistance depend करता है. तो resistance of any substance that depend upon the which kind of substance that we are using. Actually, what's its temperature, what's its length, as well as what is its cross section area. Okay, इन सारे segments पे जो होता है किसी भी substance का जो resistance वो depend करता है. मान लीजिए if metallic substance, in a metallic substance, the resistance that can be increases into the temperature. Metallic substances पे जैसे जैसे temperature increase होता जाएगा, similarly resistance also have been increases. So resistance that can be increases when the temperature that can be increases into the metallic substances. Now with the increase of also length, the length अगर increases होता है कंडक्टर के अंदर, तो also we have seen that the resistance क्या होगा, increase होगा. तो if the conductor that can be increases length अगर increase होगा, तो भी resistance क्या होता है, resistance वहाँ पे increase होता है. Similarly, if we increase the area of cross section area, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट स्पेसिफिक कंडक्टर के अंदर से पास होता है, स्पेसिफिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट अगर पास होता है तो एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. तो अगर उस क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो हमेशा वो जो स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस दैट विल बी डिक्रीजेस. सो इफ वी आर बी इंक्रीजिंग द formations of the area of a cross section area into the specific form of conductor, always be the resistance that can be decreases. So why the resistance that is generated into the conductor, resistance conductor के अंदर क्यों generate होता है, ऐसा भी क्वेश्चन हमें होता है. So for the conduction of electricity, अगर हमें electricity को conduct करना है तो we need a free electrons. हमें क्या चाहिए, free electrons चाहिए होता है. So the free electrons generally move into the conductor, so they can be easily form the electric current. कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स से मूव करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं. इसलिए जो कंडक्टर के अंदर इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं. सो इन अ कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस ड्यूरिंग द मोशन, जब नेगेटिव आयंस जब पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मोशन, जब वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, सो उनका जो मोशन होता है दैट गेट टू अपोज द मोशन ऑफ दिस टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस दैट शुड बी गेट अपोज, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं. सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट दैट गेट्स टू बी कोलैप्स टू द पॉजिटिव पार्टिकल्स, इट मोशन विल बी चेंज. इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है. So what is called at resistance of conductor? उसको आप क्या कहोगे, उसको आप resistance of conductor कहोगे, that is denoted by the R. The formation of resistance, जो resistance का formation होता है due to that kind of the collisions between the electrons and the atoms. Atoms और electrons के बीच में जो collisions होता है उसके वजह से resistance जो होता है किसी भी conductor के अंदर generated होता है. So जैसे metallic substances देखिए, metallic substances के अंदर specific copper है या एल्यूमिनियम, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं that should be more, so इसका resistance क्या होगा, less होगा.
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो रेजिस्टेंस एरिया जो होता है वायर्स का, वो रेजिस्टिव वायर्स का ही हम रेजिस्टिव वायर किसके बनते हैं, जैसे आप देखो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए जो रेजिस्टिव वायर्स होते हैं वो किसके बने हुए रहते हैं। सो ज्यादातर जो एलॉयज होते हैं, निक्रोम, एलॉयज ऑफ निक्रोम का मोस्ट ऑफ जो रेजिस्टिव वायर है वो बना हुआ रहता है। तो रेजिस्टर्स आर मोस्टली यूज्ड इनटू द इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीविजन है, रेडियोज है, इसके सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं इनके अंदर इस तरह का रेजिस्टिव जो है, रेजिस्टिव सब्सटेंसेस वहां पे यूज किए जाते हैं। तो दिस इज जनरली अ पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हमें डिस्कशन करना है रेजिस्टिविटी की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी क्या है। जनरली रेजिस्टिविटी आगे हमने डिस्कशन किया है कि रेजिस्टिविटी दैट दे जनरली डिपेंडेंट ऑन टू द स्पेसिफिक फॉर्मेशन, किस तरह का सब्सटेंस है, उसकी लेंथ क्या है, टेंपरेचर क्या है, इन सब पे सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया जितना आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी उतना डिक्रीज हो रहा है कंडक्टर के अंदर से, तो कैसे डिपेंड होता है। सो अभी हमें डिस्कशन करना है रेजिस्टिविटी के बारे में, उसका जो मेंशन, जो डेफिनेशन और यूनिट है वो कैसे आप इसको मेंशन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी में। तो सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक आप देखो कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी किसी भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं फॉर्मेशन के हिसाब से। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, resistance of the conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to its cross section area of a conductor। उसको आप क्या कहोगे, रेजिस्टिविटी कहोगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to its length and inversely proportional to its cross section area, that is the definition of resistivity। It means if the length of the conductor of the area of a cross section area that is represented by the L and A, length of a conductor that is represented by the L and A is called as the area of conductor, then we can be shown like this formula resistivity के लिए R directly proportional to length, resistance of any conductor is directly proportional to its length and resistance of any substance is inversely proportional to its cross section area, so R proportional to 1 upon A। तो इन दोनों को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो R proportional to L upon A मिलेगा। So resistance is inversely proportional to length upon area, so R is equal to small p L upon A। Now ये जो स्मॉल p जो मैंने लिखा है, स्मॉल p इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। जो मटेरियल आप यहाँ पे यूज करेंगे उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है उसको स्मॉल p से डिनोटेट करेंगे। तो R इज इक्वल टू स्मॉल p इनटू L अपॉन A, वेयर स्मॉल p इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। चलिए, तो अगर मुझे रेजिस्टिविटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस का फाइंड करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट p, अगर स्मॉल p, इट इज अ स्मॉल p, राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल p, तो मुझे किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस, तो उसका फार्मूला हो जाएगा R into A upon L। क्या हो जाएगा, R into A upon L। So unit of resistivity is equal to R into A upon L। अभी इसको फाइंड करना हो, R को आप कहेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, A को कहेंगे यूनिट ऑफ एरिया, L को कहेंगे लेंथ। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को आप किसमें मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को ओमेगा के अंदर मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं और लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल, ओमेगा इनटू मीटर। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस का आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओमेगा इनटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग अ स्पेसिफिक unit of cross section area, unit of length is called as the resistance of a conductor। तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, फिर रेजिस्टिविटी होती है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R into is this generally represented as ohm। R को किससे मेजर हम करते हैं, A, area is always defined into meter square, length को आप मीटर में फाइंड करेंगे। तो यूनिट ऑफ जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओमेगा इनटू मीटर, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस उसको किसमें मेजर करते हैं, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ R। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको कंडक्टर से मेजर करते हैं। सो दैट इज अबाउट द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is directly proportional to its length
and inversely proportional to its cross section area, that is called as a resistivity. उसको आप क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे सब्सटेंसेस, जैसे कुछ मेटल्स है, कुछ एलॉयज है, कुछ इंसुलेटर्स है, सबकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। सो टाइप ऑफ सब्सटेंस, टाइप क्या है, उसकी सब्सटेंसेस क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, वो आप इजीली आपका जो बुक के अंदर आप टेबल देखोगे, सेम बुक द टेबल दैट हैव बीन गिवन अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन। से मेटल्स के अंदर एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, टंगस्टन है। एलॉयज के अंदर उसके अलावा जो मैंगनीज है, निक्रोम है। इंसुलेटर के अंदर आप देखो तो ग्लास है, पेपर है, डायमंड्स है, इस तरह के सब्सटेंसेस है। और सबकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी यानी कि स्मॉल p ओमेगा इनटू मीटर आपके बुक में दिया हुआ रहेगा। इस रेजिस्टिविटी का यूज करके आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं। क्लियर? रेजिस्टिविटी क्या है, हाउ यू कैन फाइंड द रेजिस्टिविटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। हाउ यू कैन फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो दो तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, एक सीरीज कनेक्शन है और दूसरा पैरेलल कनेक्शन है। ये जो फिगर मैंने बनाई है दैट इज द सीरीज कनेक्शन, जिसमें तीन अलग अलग फॉर्मेशन R1 R2 R3, और ये जो फिगर बनाई है मैंने पैरेलल कनेक्शन की बनाई है। चलिए तो पहला हम डिस्कशन करते हैं जो है हमारा सीरीज कनेक्शन के बारे में। सीरीज कनेक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, फिर पैरेलल कनेक्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है कि एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ फॉर्म ऑफ सीरीज कनेक्शन और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ पैरेलल कनेक्शन। So let me move on to the first topic about your resistance, that is called series connection. अभी सीरीज कनेक्शन जो है तो यहाँ पे जो रेजिस्टर्स होते हैं सीरीज कनेक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने बनाए रेजिस्टर्स जो हैं, the registers that are connected across the 2 points, दो पॉइंट्स मेरे कौन से A और B, the registers that are connected across the 2 points A and B in the circuit such a way that the current flow through each resistor is the same. Okay, so current that can be passes through each and every resistor will be same, and that should be in a specific formation of flow. And then the resistors are also connected to the same form, that is called as a series connection. तो अगर आप रेजिस्टर्स को दो पॉइंट के बीच में ऐसे कनेक्टेड करते हैं जाकि जो रेजिस्टर्स जो उसके अंदर कनेक्टेड है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो सब में कांस्टेंट मूव करेगा सेम, वैसे कनेक्शन को आप क्या कहेंगे? सीरीज कनेक्शन कहेंगे। यहाँ पे उसको फिगर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो फर्स्ट फिगर सीरीज का मैंने लिखा है, इस फिगर के अंदर आप देखो तो तीन रेजिस्टर्स मैंने यूज किए हैं, R1 R2 और R3, ठीक है। 3 registers that should be are connected into the series at the points of between A and B. A और B के बीच में आपने 3 सीरीज कनेक्शंस के फॉर्म में रेजिस्टर्स को कनेक्टेड किया है। अब यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट को आप क्या कहते हैं? I कहते हैं। करंट that can be flow through the each and every resistor will be same. जो यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्टेड किया ना, V यानी वोल्टेज ऑफ बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो जैसे V के साथ आपने वहां पे कनेक्टेड किया है, अक्रॉस द ईच एंड एवरी रेजिस्टर्स जो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा यहाँ पे, जो वोल्टेज जो होगा, जो वोल्टेज जो यहाँ से पास होगा वो वोल्टेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तीन फॉर्मेशंस का टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी V is divided according to the 3 different resistance of values. इन तीन resistance of values के हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा। So if the voltage across the 3 resistors R1 R2 R3 are respectively V1 V2 V3, so पहले यहाँ उसका फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ सीरीज का। So V is equal to क्या मिलेगा? V1 plus V2 plus V3, ठीक है। V क्या मिलेगा आपको? V1 plus V2 plus V3, आप इसका इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर के अंदर 3 अलग अलग रेजिस्टर्स है, R1 R2 R3, तीन रेजिस्टर्स को दो पॉइंट के बीच में ऐसे आपको कनेक्टेड करना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होना चाहिए, और टोटल वोल्टेज जो बैटरी का है वो अमॉन्ग द 3 रेजिस्टर्स उसमें इक्वल वैल्यूज में डिवाइडेड होना चाहिए। तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? V1 V2 plus V3। नाउ अभी जो हमारा रेजिस्टेंस R है, टोटल रेजिस्टर्स R वहां पे आप देखेंगे तो R1 R2 R3 इस तरीके से कनेक्टेड है इन द वे दैट द करंट फ्लोइंग द ईच सर्किट इज रिमेन्स अ कांस्टेंट, सो R इज कॉल्ड एज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो R को आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टर। सो तीन रेजिस्टर्स का जो टोटल फॉर्म होगा उसको आप R कहेंगे, एंड द सर्किट ऑफ द वोल्टेज उसको आप किससे डिनोटेड करेंगे? V से डिनोटेड करेंगे।
तो वोल्टेज V हो गया और टोटल रेजिस्टेंस R हो गया, I इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के लिए ओम्स का जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू IR। फॉर द इक्विवेलेंस रेजिस्टर्स V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पे तीन अलग अलग वोल्टेज फॉर्मेशन है। V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2 हो जाएगा एंड V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अभी हमारे पास V1 इज इक्वल टू IR1 है, V2 तो V इज इक्वल टू व्हाट, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू क्या है, IR है, तो V की जगह पे आप क्या लिख दो, IR लिख दो। तो IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 IR2 IR3 हो जाएगा, ठीक है। सो V इज इक्वल टू IR, सो यहाँ पे आप IR लिख सकते हैं, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। पर आप देखेंगे कि तीनों रेजिस्टेंस के अंदर, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम जा रहा है और ड्रॉप्ड आउट क्या हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट सेम हो रहा है, तो I तो इसमें कॉमन हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो फॉर्मूला इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कनेक्शन का, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो एक चीज हमें समझना है कि जो सीरीज कनेक्शंस के अंदर जो आप रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं ना, तो जैसे करंट यहाँ से पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है तीनों रेजिस्टेंस सेम यूज करता है। मान लीजिए 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो आप, तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो होंगे वो 5 एम्पियर यूज करेंगे। लेकिन जो टोटल वोल्टेज जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो वोल्टेज जो है इन तीनों में अमोंग्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज जो होगा वो इसका एक पॉइंट के बाद फिर दूसरे पॉइंट में मूव करेगा, फिर यहाँ से इस पॉइंट में मूव करेगा। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज का यूज करेगा, फिर ये और इस तरह से अलग अलग वोल्टेज जो होंगे वो फ्लक्चुएटेड होते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द वोल्टेज वाला जो होगा उसका पावर जो वोल्टेज होगा डीम होगा और इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही कनेक्शंस के अंदर से पास आउट हो रहे हैं। तो दैट इज अबाउट द सीरीज कनेक्शन। अभी इस कनेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो सीरीज कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जनरली सीरीज कनेक्शंस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि करंट व्हिच फ्लो थ्रू द सर्किट ऑफ ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर से, जितने भी आपने रेजिस्टेंस यूज किए होंगे वो सारा रेजिस्टेंस जो होगा इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो सेम यूज करेगा ना। अगर टोटल वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, जितने भी रेजिस्टेंस आप यूज करोगे ना सबका वोल्टेज जो होगा वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। सो वोल्टेज ड्रॉप उसको कहते हैं। तो ईच एंड एवरी रेजिस्टर्स जो वोल्टेज ड्रॉप आउट होता है इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन अ फॉर्म ऑफ सीरीज इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेजिस्टर। जो टोटल वोल्टेज के जितना वो होता है। नाउ इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स है is always be greater than the largest resistors. Equivalent resistors is always be greater than the largest resistor. So these are generally characteristics of series connection. इस तरह से उसकी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। चलिए सीरीज कनेक्शन के बाद दूसरा जो फिगर में ड्रॉ किया पैरेलल कनेक्शन, उसकी फिगर्स उसके फॉर्मूलास को डिराइव करते हैं। लेट मी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। देखो पैरेलल कनेक्शन जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अब ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है पैरेलल कनेक्शंस के अंदर है, यहाँ से अलग अलग पैरेलल मैंने 3 पॉइंट दिए हैं। तो आपको सब फिगर यहाँ पे दिख रहा है, S1 इज द फिगर, R1 R2 और R3 ये तीनों जो है एक पैरेलल कनेक्शंस के अंदर तीनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड है बिटवीन द 2 पॉइंट्स A और B। बिटवीन द 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टर्स ऑफ वायर, उसके अंदर आपने 3 पैरेलल रेजिस्टेंस को कनेक्टेड किए हैं एट द फॉर्म ऑफ A एंड B। नाउ यहाँ पे जो अलग अलग 2 एंड्स है A और B है, तो वन एंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक एंड ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो एक कॉमन पॉइंट A के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो है वो कौन से कॉमन पॉइंट B के साथ कनेक्टेड है। वन पॉइंट इज कनेक्टेड विद द पॉइंट A, दूसरा जो कॉमन पॉइंट है वो B है। नाउ इलेक्ट्रिक करंट I, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहेंगे, I कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट I is generally passes through the point A, पॉइंट A में से पास आउट होगा and that is divided into the 3 equal parts। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। The electric current which is passes into the circuit from the point A is distributed or may be divided into the 3 equal parts. So
ये जो करंट पास आउट हो रहा है, करंट दैट्स फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स R1 R2 R3, तो तीन पार्ट में डिवाइडेड हो जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या लिख रहे हैं I1 I2 और I3 रिस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट I टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट का होगा वो तीनों तीन इक्वल पार्ट्स का जो डिवाइडेड हुआ है उसके सम जितना होगा। सो I is equal to I1 plus I2 plus I3। सो इफ इन अ पैरेलल कनेक्शन से अगर देखेंगे तो वोल्टेज जो V है, जो वोल्टेज है, voltage dropped out every initial part of the resistance, that should be voltage V is may be a constant according to the ohm law। यहाँ पे voltage constant होगा, electric current fluctuate होगा। So therefore according to the ohm's law I is equal to क्या होगा, V upon R। I is equal to what, V upon R। तो अब तीन अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेशन है, I1 is equal to V upon R1, उसके बाद I2 is equal to V upon R2 और I3 is equal to V upon R3। According to Ohm's law आप ऐसे लिख सकते हैं। So if one such that if you see that कि तीनों तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 जो कनेक्टेड है, इनके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन दैट शुड बी I। So I is equal to हमारे पास क्या है, V upon R है, तो आप इसको I की जगह पे V upon R लिख सकते हो। तो V upon R is equal to V upon R1 प्लस V upon R2 प्लस V upon R3। पर ये जो पैरेलल कनेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, वो ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है। वोल्टेज अगर सेम है तो हो जाएगा 1/R is equal to 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो फॉर्मूला बनता है किसका बनता है, पैरेलल कनेक्शंस का बनता है। सो यहाँ पे 1/R इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ 3 रेजिस्टर। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका बनेगा, ये पैरेलल कनेक्शंस के बारे में बनेगा, दैट शुड बी मूविंग एज अ पार्ट ऑफ पैरेलल कनेक्शन। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं कि पैरेलल कनेक्शन जैसे सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे पैरेलल के भी है। अभी पैरेलल कनेक्शंस के अंदर देखो तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R is equal to the reciprocal of the individual resistance। टोटल इक्विवेलेंस ऑफ द रेजिस्टेंस जो रेसिप्रोकल R है वो आपका तीनों तीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल जितना होगा। वोल्टेज which should be dropped out into each and every resistance always be constant। वोल्टेज जो ड्रॉप आउट होगा तीनों के अंदर वो आपका कांस्टेंट होगा। फ्लक्चुएशन क्या होगा, करंट का होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो फ्लक्चुएटेड होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस इज ऑलवेज बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर्स, उससे भी कम होगा। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। कौन सा हुआ, ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में आपको मैंने समझाया है। अब उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है। दिस इज लास्ट टॉपिक। तो अभी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, सबसे पहले तो हम उसके एडवांटेजेस के बारे में समझेंगे कि सीरीज कनेक्शन का एडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो देखिए सीरीज कनेक्शंस में सबसे पहले आप देखोगे जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बाय कनेक्टिंग द ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस, इट मींस द इलेक्ट्रिक करंट दैट विल बी डिक्रीज। आपको इलेक्ट्रिक करंट को अगर कम करना है, इफ यू वांट टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट, the number of resistance you can be easily connected into the specific form of circuit. So if you want to control the specific formation of current into the circuit, we have to use the series connection. So the series connection is generally have to be useful to control the electric current। इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल होता है। मोरेओवर अभी हम घर के अंदर एक फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज इज जनरली यूज्ड टू बी विद द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन, जिसमें 230 वोल्ट का एक अल्टरनेटिव जो फॉर्म होता है एक्यूमुलेटेड करंट, उसका हम फ्यूज यूज करते हैं। और मोस्टली अगर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो ज्यादा होता है तो वो अप्लायंसेस को ब्रेक होने से बचाते हैं, क्योंकि उसमें एक सिंपल कम फॉर्मेशंस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ वायर होता है जो उसको ब्रेक आउट करता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है सीरीज कनेक्शन का, तो टोटल जो रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंसेस का होता है दैट शुड बी बाय डूइंग द सम ऑफ ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए R2 अगर बिगड़ गया है रेजिस्टेंस, तो मुझे इसको रिपेयर करने के लिए मेन लाइन को बंद करना पड़ेगा, नहीं उसकी वजह से R1 और R3 भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो किसी भी फॉल्ट को रिकवर करने के लिए अगर आप काम करते तो एक स्पेसिफिक फॉर्म वहां पे कंटेंट हो जाता है। सो इन अ सीरीज कनेक्शन इफ इट शुड बी फॉल्ट occurs in any appliances of the circuit,
that break the entire circuit's flow of electric current into the appliances. ये उसका एक डिसएडवांटेज होता है। चलिए पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझते हैं। Now अभी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, the magnitude of the equivalent resistance is always smaller than the smallest resistance। ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अगर हमें किसी भी कंपोनेंट अगर कोई स्टॉप हो जाता है वर्किंग करने से, तो बाकी के कंपोनेंट नहीं रुकेंगे। मान लीजिए R1 अगर फॉल्टेड है और उसको मुझे रिकवर करना है, तो R2 और R3 को मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। So if any one fault that will be occurs, it can be easily used without be stopping the any other। उसके एडवांटेजेस में होते हैं। Now अभी इसका जो डिसएडवांटेजेस है कि when we need to be high value of resistance, अगर हमें हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए तो we cannot be use the parallel connection। और पैरेलल कनेक्शंस का एक और फॉर्मेशन जो होता है, किसी जो फॉर्मेशन हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितना स्मॉल होता जाएगा उतनी एनर्जी उसकी कम होती जाएगी। तो दिस इज जनरली पार्ट ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। तो आई होप कि आज का जो सेशन हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या है, इस पे डिपेंड करता है कंडक्टर के अंदर क्यों रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, रेजिस्टिविटी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कनेक्शंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। So I hope that today's session that should be easily understood and comfortable for you as a part of studies. I requested you whatever topics that is given into the textbook, just revise it, write the questions in your own words, just practices that lead to different kind of digital mediums and upload your knowledge by implementing this type of studies. So when we meet tomorrow, we'll be discussing about the other topics like electric power, heating effect of electric power, electric plattings. These are topics we'll be discussing into our next sections. So whatever we have to study in the previous section, just revise it and write it in your own words. Keep updating our knowledge by using different digital mediums of learning. Stay home, stay safe, take care, and bye.